Good morning, friends. Last class में we did in the second lecture of this chapter we did about the autotrophic nutrition, that is how do plants synthesize their own food, and auto means self and autotrophic means self nutrition. So today we are going to start with the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means different types of nutrition. So when we say different types of nutrition, so how does the different types of nutrition actually occurs and on what basis it is adapted? So different types of nutrition depends on the type and the availability of food material as well as how it is obtained by the organism. So for example, we take the example of a, let's say, a kettle, a cow and a tiger. A tiger has to predate. Predate means it has to kill the prey. Let's say a tiger wants to eat the deer. The deer is its prey and tiger is a predator. The tiger will kill the prey, that is the deer. Now since a deer is a locomotory organism, it is moving, mobile organism, then a tiger also has to move, run behind it and has to kill the prey, and then it will be able to eat it. Okay, and in the different manner, let's say kettle की अगर हम बात करते हैं तो kettle eats the grasses. ठीक है, grasses is a stationary source of food. So there are two different types of food, whether the source of food is stationary or it is mobile. Then the availability of food material, what kind of food it is available, what kind of food. For example, let's say it is in the form of a vegetable, it is in the form of a grass, that is I am talking about herbivores, or if a tiger is eating a deer, so it is a carnivore. So hence we have a different types of modes of nutrition based on this. Okay, now there is also a range of strategies by which the food is taken in, how it is food it is taken and how it is utilized by the organism. So on the basis of that also we have different modes of nutrition. Like we talk about the fungi, bacteria. When you keep a bread outside your refrigerator, after some time, after a day for example, you will see that on the bread something green is growing. Okay, green or bluish color is growing. So what is that green part that is growing on the bread? It is the fungus. So that means fungus, it grows on the food and absorbs the nutrient from that. So you can call about various fungus like yeast, mushroom is also a fungus. Okay, bread molds, which I just told you, and bacteria also grows in the same manner. That is, bacteria and fungi, they decompose the organism, वो चीज़ों को सड़ा देता है और उसमें से चीज़ों को खा लेता है. ठीक है. Now second type of nutrition comes when the organism takes in the food. Okay, it takes in the food and then digest. What does the fungi and bacteria did? They first digested the food outside their body and then absorbed it. But when we talk about human beings, they take in the food, you eat chapati and then chapati gets digested within your food. So this type of nutrition is called as holozoic nutrition. Am I clear? The fungus and bacteria, what they do, they are saprophytes, that is they feed on dead and decaying organism. Then we have holozoic nutrition, that is when the organism takes in the whole of the food and then digestion takes place within the body. Okay, now there are third type of nutrition where the plants and animals grow on the other organisms body without killing them. Okay, like for example, I just gave you an example of a tiger and a deer. Tiger has to kill the prey and then it will eat, but there are certain organisms which grow on the host organism. Okay, host मतलब जिसके ऊपर वो फीड करता है. तो फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट गया, जैसे हम बोलते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, डॉक्टर को हम दिखाते हैं, या इंटेस्टाइन में पेन हो रहा है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, आपके पेट में कीड़े हैं. कीड़े का मतलब वॉर्म्स हो गए. सो व्हाट आर दीज वॉर्म्स? दे आर एक्चुअली द पैरासाइट्स. दे आर नॉट किलिंग यू बट दे आर डिराइविंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम योर बॉडी. ओके, इन द सेम मैनर लीच इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के बाहर स्टिक होकर आपकी बॉडी से ब्लड सक कर रहा है. So such type of organisms do not kill the host but they derive nutrition for them, and this type of nutrition is called as parasitic nutrition. So we just now studied different types of nutrition. We studied parasitic nutrition, we studied holozoic nutrition, we studied this saprophytic nutrition. Okay, so moving on with these are three different types of nutrition. Now moving on to the second topic, that is how do organisms obtain their nutrition. Now there are various ways that the organism obtains its nutrition. So first we start in case of single celled organism. So there is a figure 6.5 written drawn here. What does this figure shows you actually? This figure is showing you how does amoeba takes in the food.
नाउ दिस इज एन अमीबा, येलो कलर्ड बॉडी ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस उसका सेंटर में और फूड पार्टिकल आपको रेड कलर से शो किया है. If amoeba has to take in this food, so what does the amoeba do? It moves closer to the food and then it extends its body. Since amoeba is a eukaryotic organism, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी एनिमल है तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन है बाहर विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. ठीक है, इसके लिए अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता है. फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो क्या करता है, ऐसे मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा और फूड के ऊपर फूड को एंगल्फ करेगा, खाने के लिए उसको एंगल्फ करना शुरू करेगा. एंगल्फ मतलब अंदर लेना. जब वो अंदर ले लेगा तो अंदर लाने के बाद यही फूड बना देता है फूड वैक्यूल. फूड पार्टिकल इज पैक्ड इन अ फूड वैक्यूल एंड देन विद इन दिस फूड वैक्यूल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस. ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हो, these finger like projections that we are seeing, these are called as pseudopodia. These are called as pseudopodia, or you can also call it as false feet. Okay, I'm writing here, you can also call it as false feet. Just a second. You can call it as false feet. Okay, false feet करता क्या है, helps in engulfing the food. ओके, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इस तरीके के प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस. एंडो मतलब अंदर ले जाना, किसके अंदर ले जा रहा है, सेल के अंदर. सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. ओके, so this is how the food is taken in within the organism by the formation of false feet or pseudopodia. ठीक, ना ये हो गया अमीबा के केस में. अब एक और हमको हाँ, इसी तरीके से जब अमीबा ने फूड को अंदर लिया, अब फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो उसके पास वेस्ट बचेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, वो इसी तरीके से फूड बॉडी के बाहर भी आ जाएगा. ओके, ना अब ये तो था अमीबा का केस. अमीबा में क्या है कि मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है. इट इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब हम एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, दैट इज़ पैरामीशियम. पैरामीशियम की जब आप बात करते हो तो पैरामीशियम में हमको वापस एक स्ट्रक्चर मिलता है. लेट मी शो यू द फिगर ऑफ दैट, जस्ट अ मिनट. ओके, हियर इट इज. ठीक है, दिस इज द पैरामीशियम फिगर. नाउ इन दिस पैरामीशियम फिगर द बॉडी इज फिक्स्ड, द बॉडी outermost part is fixed. That means it is not able to form the pseudopodia like structure. ठीक है, and but it can move towards the food source with the help of these cilia. You can see this cilia structure. Then now whenever, let's say, food is on this side, so whenever the paramecium feels that food is on this side, with the help of cilia it will move towards the right side. And now you can see this oral groove. This oral groove is like the mouth of the paramecium. From this oral groove, with the help of cilia, what will cilia do? Cilia will push the food inside the oral groove and the food will move from outside to inside here. Okay, so this is how the oral grooves function. Oral groove is exactly the same as the mouth of this paramecium. gullet भी आप इसको बोल सकते हो, जहाँ से food with the help of cilia अंदर push हो जाता है in the buccal cavity. So there are two different unicellular organisms आपने देखे, उन दोनों में आपको अलग अलग तरीके से ये mode of nutrition मिल गया. ठीक है, now moving back. Now this was about the mode of nutrition in unicellular organisms. Now when we move to the nutrition in human beings, ठीक है, the most important, the most interesting part of this nutrition topic, nutrition in human beings actually starts from the mouth. Okay, ठीक है, and the tube that is called as the alimentary canal, वो ही ultimately nutrition में पूरा part role play करती है. तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड इट फिनिशेज एट द एनस. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड इट फिनिशेज एट द एनस, द लास्ट पार्ट. सो फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन इन एंड फ्रॉम द एनस द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. ओके, सो दिस इज this elementary canal part. Okay, नाउ मूविंग ऑन. अभी हम एक्टिविटी एक बार 6.3 देख लेते हैं. एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या बताया है, हमने 2 टेस्ट ट्यूब में 1 ml स्टार्ट सॉल्यूशन लिया. ठीक है,
और हमने फिर क्या किया, हमने सलाइवा को टेस्ट ट्यूब ए में डाला और दोनों ट्यूब्स को हमने सलाइवा सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब में डाला, दैट इज टेस्ट ट्यूब ए, बी में हमने कुछ नहीं डाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब में आफ्टर अराउंड 20-30 मिनट्स हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन की एक एक ड्रॉप डाल दी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। देन नाउ इन द टेस्ट ट्यूब ए वी विल सी दैट नाउ सिंस मैं पहले आपको बताता हूँ कि टेस्ट ट्यूब ए में हुआ क्या। जब हमने स्टार्च सॉल्यूशन लिया था, स्टार्च सॉल्यूशन जैसे हमने पीछे ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था कि जहाँ पे स्टार्च या जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहीं स्टार्च बनेगा, वेरीगेटेड लीफ वाला एक्टिविटी में, वहीं पे हमको आयोडीन ने कलर देना शुरू किया था, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने स्टार्च सॉल्यूशन 1-1 ml लिया, लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में मैंने सलाइवा डाल दिया। नाउ सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, ठीक है, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा, स्टार्च वहाँ नहीं बचेगा, ओके। बट इन टेस्ट ट्यूब बी वी डिड नॉट पुट दी सलाइवा, ओके, दैट मीन्स स्टार्च वहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, वहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा। टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, टेस्ट ट्यूब में स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डाली, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सिंस स्टार्च वाज डाइजेस्टेड, वहाँ पे हमको आयोडीन कलर बहुत लाइट देगा या नहीं देगा, जो हमको उसका वॉयलेट कलर या डार्क ब्लू कलर जो हमको आयोडीन से मिलता है, रिएक्शन जब वो करेगा स्टार्च से तो इट गिव्स यू वॉयलेट कलर या ब्लूइश कलर। वो ब्लूइश कलर मुझे नहीं मिलेगा, नेग्लिजिबल या फिर बहुत लाइट मिलेगा, जो थोड़ा बहुत स्टार्च अगर बच गया होगा तो। बट इन टेस्ट ट्यूब बी यू विल गेट द वॉयलेट कलर, प्योर वॉयलेट कलर आपको डार्क कलर का मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च इंटैक्ट था। दिस शोज यू कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, टूट गया, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, ओके। And in test tube B, since saliva is not added, then the starch remained intact, and hence it shows the reaction with the iodine, or it shows color with the iodine solution, okay. This proves us that our saliva contains an enzyme called as salivary amylase. It contains an enzyme called as salivary amylase, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एंजाइम का नाम, saliva contains an enzyme called as salivary amylase, और इसका दूसरा नाम होता है टाइलिन, PTYLAN, PTYALIN, okay. So what does this enzyme do? This salivary amylase breaks down starch into maltose, okay. Or I can say, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, or I can say it breaks down polysaccharide to disaccharide, okay. So this is what the action of enzyme did. Starch is a polysaccharide. Polysaccharide का मतलब क्या होता है? Poly means many, saccharide means sugar. When many sugar molecules are attached together, and disaccharide means when two molecules of sugar are attached together. So this is disaccharide. Okay. So what does this enzyme did? It breaks down starch, which is a polysaccharide, into a disaccharide called as maltose. Polysaccharide means many sugar molecules. Poly means many, saccharide means sugar, and di means two, and saccharide means sugar. So two sugar molecules में convert कर दिया. Like for example, 10 molecules of sugar थे, उन 10 को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो it divided into disaccharide. Okay. चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं पूरा एक बार वापस से, ठीक है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है और किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस चलता है,
वो इस फिगर से हम समझेंगे, ठीक है। नाउ आवर एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, दिस इज द माउथ, ओके, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और द बक्कल कैविटी, और साथ में हमारा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है? द स्पेस एंक्लोज्ड बाय योर जॉज, द स्पेस एंक्लोज्ड बाय योर जॉज इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी, ओके। बक्कल कैविटी के अंदर जब फूड जाता है तो उसको दो चीज़ें मिलती हैं जो उसके ऊपर काम करती हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली है टीथ और दूसरा है टंग, ठीक है। इसके बेसिस पे ही जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन एक्चुअली है क्या, मैं आपको यहाँ पे एक साइड में लिख के दे देता हूँ। डाइजेशन है क्या? डाइजेशन इज मैकेनिकल and chemical breakdown of food, mechanical and chemical breakdown of food in the presence of enzymes, okay. You can call it as enzymes, or you can also call it as biocatalyst. You can also call it as biocatalyst, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। सो डाइजेशन इज व्हाट? इट इज द मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब जैसे आपने फूड को अंदर लिया तो सबसे पहले मैकेनिकल काम किसने किया? मैकेनिकल मतलब उसको बड़े बड़े पार्ट से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, ठीक है। जब उसने बड़े बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में टूटा तो हमने मैकेनिकली उसको च्यू किया, टीथ ने उस पर काम किया। एंड केमिकल वर्क इज डन बाय द एंजाइम्स। एंजाइम्स आर व्हाट? दे आर बायोकैटलिस्ट। और एंजाइम काम कैसे करते हैं? दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, दे इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, मतलब वो फटाफट डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स अगर नहीं होंगे तो हम फूड को बहुत टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, लेकिन एंजाइम्स होने से फ़ायदा क्या होता है? फटाफट वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो हेंस डाइजेशन इज व्हाट? इट इज़ द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ बायोकैटलिस्ट, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड बोल सकते हो या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डाइजेशन डेफिनेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं कि डाइजेशन जब हम करते हैं तो डाइजेशन में हमारे पास अलग अलग स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या है? मैं उसको यहीं पे आपको लिख के देता हूँ। डाइजेशन इन्वॉल्व्स सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन अ फूड, ठीक है, फ्रॉम mouth, taking in a food from mouth, okay. This is what ingestion is. This was the first step. Let me mark it out. अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप इज ब्रेकडाउन, और यू कैन कॉल इट एज डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको ऊपर लिखी, मैं एक सिंप्लीफाइड डाइजेशन डेफिनेशन और लिख देता हूँ। ब्रेकिंग डाउन of food, breaking down of complex food to simple food to simple one in the presence of enzymes, okay. थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप इज आपने डाइजेस्ट किया, अब आप क्या करोगे? एब्जॉर्प्शन करोगे। ना यू विल एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इन बाय एब्जॉर्प्शन, ओके, इनटू ब्लड या फिर लिम्फ। लिम्फ क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप इज, पहला हमने क्या किया? इंजेस्ट किया, हमने उसको डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया। अब हम आएंगे एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन इज
utilization of absorbed food to release energy. Okay, next and the last step पे आते हैं, that is fifth one. This is egestion. Okay, egestion is removal of undigested food from the body. This is egestion. Okay, so this is how your process of nutrition is divided into, और आई शुड से न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, अब डाइजेशन के बजाय आप न्यूट्रिशन लिख सकते हो. न्यूट्रिशन, ओके, लेट्स लीव इट टू डाइजेशन ओनली बिकॉज हम वही पढ़ रहे हैं. तो डाइजेशन इन्वॉल्व्स, ऐसा हम करके पढ़ लेते हैं. ठीक है, डाइजेशन आप बोल सकते हो, न्यूट्रिशन आप बोल सकते हो. दीज आर वेरियस स्टेप्स. ओके, जब हम इन स्टेप्स की बात करते हैं तो डाइजेशन, सबसे पहला स्टेप आता है इंजेशन. इंजेशन में क्या किया आपने, माउथ से फूड को अंदर लिया. जब माउथ से फूड अंदर जाएगा तो उसको दो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, दैट इज़ इन द बक्कल कैविटी. जब वो जाएगा तो उसको दो चीज़ें यहाँ मिलती हैं. वो दो चीज़ें क्या हो गई, सबसे पहले आता है टीथ एंड द टंग. टीथ क्या करता है, टीथ करता है मैकेनिकल डाइजेशन, ग्राइंडिंग, च्यूइंग, बाइटिंग, आप सब टीथ से करते हो. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ भी अवेलेबल हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. सेकेंड आता है फंक्शन टंग का. टंग क्या करेगा, टंग उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगा. जो च्यूड फूड था उसको टंग सलाइवा के साथ मिक्स करेगा, और मिक्स करने के बाद वहीं पे थोड़ा बहुत डाइजेशन भी चलेगा. ठीक है, जो अभी हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा कि सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है. ठीक है, वो पार्शियल डाइजेशन होने के बाद फिर फूड ईसोफेगस के थ्रू, विच इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ईसोफेगस में क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके, लेट मी राइट इट डाउन हियर. ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो फूड था वो कहाँ पहुँचेगा, फूड पहुँच जाएगा ईसोफेगस के थ्रू. ईसोफेगस undergoes peristaltic movement. Esophagus undergoes peristaltic movement for passing the food from mouth to stomach. Okay, so what are peristaltic movements? Peristaltic movements होते हैं rhythmic contraction and relaxation of the muscles. Peristaltic movement क्या होगा, rhythmic contraction and relaxation of the muscles. Okay, so this is the peristaltic movement. अब इस मूवमेंट की हेल्प की वजह से जो आपका फूड था वो कहाँ पहुँचा, वो पहुँच गया स्टमक में पहुँच गया, और स्टमक में पहुँचने के बाद फिर उसके फर्दर डायरेक्शन चलेगा. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया. माउथ से फूड एंटर हुआ, माउथ से फूड एंटर होने के बाद बक्कल कैविटी में गया. बक्कल कैविटी में उसको दो चीज़ें उसके ऊपर एक्शन किया, दैट इज़ टीथ एंड टंग. ठीक है, टीथ ने उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन किया, टंग ने उसको सलाइवा के संग मिक्स किया, साथ साथ सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन भी यहीं पे हुआ. सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट कर दिया इनटू द सिंपल शुगर. ठीक है, अब सलाइवा क्या है, सलाइवा सिक्रीट कहाँ से होता है. सलाइवा एक्चुअली सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है. ठीक है, दैट कंटेन्स वाटर, एंजाइम, ऑल दिस. सलाइवा ऐसा नहीं कि खाली जब हम खाना खाते हैं तभी आता है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप के बाहर से जा रहे थे और वहाँ पिज़्ज़ा बन रहा था. इफ़ यू लाइक पिज़्ज़ा देन your mouth will start watering. ठीक है, so that means the sense of the smell of the food, or the sense of the food, or the taste of the food, or just the seeing of the food increases the salivary secretion in your mouth.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, जैसे ही फूड यहाँ पे आया तो फूड इसके पास पहुँचेगा स्टमक में। स्टमक में फूड का फर्दर मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होगा। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मैकेनिकल केमिकल ब्रेकडाउन चलता ही रहता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन माउथ में हमने देखा टीथ ने किया, बाकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में मसल्स करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। पूरे एलिमेंट्री कैनाल मसल से ही बनी हुई है अल्टीमेटली, ठीक है। देन स्टमक के अंदर वापस से उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद फिर वो चलता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन दोनों चलता है मेजर यहाँ पे। उसके बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे दोबारा से, एंड देन इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, सो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट द हाउ द डाइजेशन प्रोसेस गोज ऑन। अब मैं आपको एक पहले आज वाली क्लास के लिए एक फिगर दिखा रहा हूँ, मतलब एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें आपको ऑलमोस्ट पूरा आइडिया आ जाएगा किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। एंड द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, so let us first watch the video once. Done. This is the video. Now you can see, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल दिखाया। अब आपको यहाँ दिखा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स कौन कौन सी हमारे पास? हमारे पास 3 तरीके की ग्लैंड आती हैं, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेंक्रियास। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड secretes saliva, liver secretes bile and pancreas secretes pancreatic juice. I repeat, salivary gland secretes saliva that contains the enzyme salivary amylase, जो मैंने अभी आपको नोट्स भी लिखवाए। liver contains bile or secretes bile and pancreas contains pancreatic juice. Okay, चलो, now these are the glands. इन glands के बाद आपको बताया कि डाइजेशन के जो 5 स्टेप हमने देखे थे न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन में हमने देखा कि वो फूड हमने माउथ से अंदर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही फूड माउथ से, जब यहाँ आप देख रहे हो, जब ये फूड माउथ से अंदर गया तो फूड माउथ से अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, ये फूड अंदर लिया, दिस इज द एप्पल दैट शी इज ईटिंग नाउ। अब यहाँ से डाइजेशन का पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द टीथ पार्ट एंड दिस इज द टंग पार्ट। सलाइवरी ग्लैंड उसके माउथ में दोनों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर भी और साइड में भी। जैसे ही फूड अंदर गया तो फूड का पहले ब्रेकडाउन किसने किया? टीथ ने किया। ब्रेकडाउन करने के बाद इसके ऊपर और साथ में टंग क्या कर रहा है? उसको घुमा रहा है। अब सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेंगे। यू कैन सी दिस इज द सलाइवा, ग्रीन कलर। एज सुन एज दिस सलाइवा एक्ट्स ऑन द फूड, फूड का डाइजेशन यहीं पे शुरू हो जाएगा। दिस इज द एंजाइम आई जस्ट टोल्ड यू। इस एंजाइम ने क्या किया? स्टार्च के संग बाइंड किया और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज के अंदर, छोटे पार्टिकल्स में, इन शॉर्ट। ठीक है, टंग ने क्या किया? साथ साथ सलाइवा और फूड को मिक्स करना शुरू किया। मिक्स करके फिर उसने उसको कहाँ भेजेगा? पीछे की साइड भेजेगा, दैट इज इन द ईसोफेगस। ओके, चलो, अब एक रीजन आ गया, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। फूड फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहीं पे ऊपर नोज है हमारी, नोज से एयर भी यहीं पे आती है और फूड भी यहीं पे आता है। सो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, अब फेरिंग्स के बाद आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 ट्यूब दिख रही हैं। आगे वाली ट्यूब होती है ट्रैकिया विच इज़ द विंड पाइप, पीछे वाली ट्यूब होती है ईसोफेगस दैट इज़ द फूड पाइप। ओके, फूड विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। अगर फूड विंड पाइप में चला गया तो ब्लॉकेज हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा और इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। इसीलिए विंड पाइप के ऊपर की साइड हमने एक कवरिंग लगा देते हैं, एक फ्लैप लगा होता है विच इज़ कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। ठीक है, सो यू कैन सी इन दिस वीडियो दैट फूड इज गोइंग इनटू द, व्हेन फूड इज गोइंग एपीग्लॉटिस क्लोजेस द ट्रैकिया और द विंड पाइप। ठीक है, now as soon as food has passed, now food will undergo the peristaltic movement. Peristaltic movement is what? It is the rhythmic contraction and relaxation of muscles present in the esophagus. ठीक है, तो esophagus में food contraction relaxation contraction relaxation आप देख रहे हैं वीडियो में, होते हुए कहाँ पहुँचेगा? It will reach into the stomach part. So this movement is called as peristalsis or peristaltic मूवमेंट। ठीक है, अब हमारे पास जब हम ईसोफेगस की बात करते हैं, सो देर आर सेल्स प्रेजेंट इन द ईसोफेगस विच आर कॉल्ड एज एपिथेलियल सेल्स।
एपिथेलियल सेल्स ने क्या सिक्रीट किया, म्यूकस सिक्रीट किया। म्यूकस सिक्रीट करने से फ़ायदा क्या होगा, लुब्रिकेशन हो जाएगा। म्यूकस एक विस्कस स्टिकी चीज़ होती है जो कि आपके फूड पाइप को लुब्रिकेशन में हेल्प कर देती है, ठीक है, ताकि फूड का पैसेज इजीली हो जाए। नाउ अब फूड आ गया जे शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्टमक, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। जैसे ही फूड यहाँ पे आएगा, अब फूड का यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट, आप देख रहे हो फूड घूमना शुरू हो गया, चर्निंग मूवमेंट और उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और द जूस दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कौन करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज़ें सिक्रीट करती है अलग अलग, दैट इज HCl, एंजाइम एंड द म्यूकस, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं HCl की बात करते हैं। HCl क्या करता है, एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेशन में हेल्प करता है, ठीक है। HCl क्या करेगा, एंजाइम जो यहाँ सिक्रीट हुआ पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम था, उसको उसने एक्टिवेट किया। एंजाइम अब फूड के संग अटैच होगा, प्रोटीन के संग अटैच होगा और प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन, उसने उसको प्रोटीन को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन और कर दिया, ठीक है। फूड हमारे स्टमक में 4 से 5 घंटे तक रुकता है फॉर दिस रीज़न। साथ साथ म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस का सेम काम जो पीछे हमने देखा, लुब्रिकेशन तो है ही है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, वो HCl जब स्टमक में होता है तो उसका pH बहुत कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, pH हो जाता है 1.8। इतने कम pH पे हमारी जो स्टमक की वॉल है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है, उसमें डैमेज हो सकता है। हेंस म्यूकस यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूकस एक लाइनिंग बना देगा, द वाइट लाइनिंग दैट यू आर सीइंग, वो वाइट लाइनिंग बनने की वजह से HCl स्टमक की वॉल पे काम नहीं कर पाएगा और उसको डैमेज नहीं होगा, ओके। सो नाउ द फूड फ्रॉम द स्टमक गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड एज डिओडेनम, ठीक है। उससे जस्ट पहले अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमको एक मार्क किया था स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर 2 जगह प्रेजेंट है। एक हमने यहाँ देखा जब इसोफेगस से फूड स्टमक में आया, और जब स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में जाएगा, दोनों जगह स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब स्टमक की स्टार्टिंग में और स्टमक के एंड में दोनों जगह स्फिंक्टर प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज दिस रोल ऑफ स्फिंक्टर, स्फिंक्टर प्रिवेंट्स द बैक फ्लो। बैक फ्लो मतलब फूड स्टमक से उल्टा नहीं चला जाए इसोफेगस में, और सिमिलरली इंटेस्टाइन से स्टमक में नहीं चला जाए, ठीक है। उसको रोकने के लिए हमारे पास स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स आर जस्ट लाइक द गेट्स जो उल्टे नहीं खुलते, एक डायरेक्शन में खुलेंगे लेकिन वापस उल्टे नहीं खुलेंगे, ठीक है। फिर वॉमिटिंग का केस क्यों आता है, वॉमिटिंग के अलग अलग रीजंस हैं, एसिडिटी, ओवर ईटिंग, दैट यू विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ आज एक ब्रीफ पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ किस किस तरीके से फूड चल रहा है। अब फूड पहुँचा कहाँ पे, अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में जब फूड पहुँचेगा तो इसका सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, 6.5 मीटर्स की लॉन्ग ट्यूब है, प्लस इसके अंदर होते हैं विलाई, ओके। अभी वो फिगर हम देखेंगे आगे। अब इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड पहुंच गया तो यहाँ पे कुछ कुछ जूसेस आते हैं, साथ में सिक्रीट होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द दिस पेंक्रियाज, येलो कलर पार्ट, एज वेल एज लिवर, ठीक है। पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज क्या देगा, पेंक्रियाटिक जूस, दिस इज़ द पेंक्रियाटिक जूस जो इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। वो किस पे काम करेगा, प्रोटीन्स और फैट्स पे काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे भी काम करेगा। फिर लिवर आता है। लिवर कहाँ से आएगा, जो ग्रीन पोर्शन आप ऊपर देख रहे हो, लिवर इज सिक्रीटेड बाय, सॉरी, बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर, आई रिपीट, बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर बट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, दिस पोर्शन, ठीक है। बाइल सिक्रीट किसने किया, लिवर ने, स्टोर कहाँ हुआ, गॉल ब्लैडर में, और बाइल सिर्फ फैट्स पे ही काम करता है, ठीक है। तो जब हम इंटेस्टाइन में पहुँचे तो इंटेस्टाइन में हमारे पास 3 चीज़ें हमको मिल गई। एक हमको मिल गया प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि पेंक्रियाज ने सिक्रीट किया, ट्रिप्सिन जिसको बोलते हैं। दूसरा हमको मिला कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, एमाइलेज, सेम एंजाइम जो कि सलाइवा में प्रेजेंट था, सिर्फ नाम यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज है, वहाँ पे भी अमाइलेज था। हम यहाँ पे उसको बोलेंगे पेंक्रियाज सिक्रीट हो रहा है तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज बोल देंगे, वहाँ पे सलाइवा में था तो सलाइवरी अमाइलेज बोल दिया था।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया बाइल. बाइल एक्ट्स ऑन फैट. ओके, सो दीज आर द 3 different types of enzyme, this parts that will function on different types of nutrients or the food. बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता. यू हैव टू रिमेंबर दिस. बाइल डज नॉट कंटेन्स एनी एंजाइम. ओके, अब चलते हैं आगे. अब आया एब्जॉर्प्शन का पार्ट. जब हमारे एंजाइम्स ने फूड को सबसे छोटे पार्टिकल में डाइजेस्ट कर दिया, अब हमको इसको करना पड़ेगा एब्जॉर्ब. ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा. ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होते हैं विलाई. यू कैन सी दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ओके, ये करेंगे फूड को एब्जॉर्ब. फॉर एग्जांपल शुगर एब्जॉर्ब किया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया. ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने के बाद आप देख रहे हो रेड और ब्लू कलर का पोर्शन. तो रेड और ब्लू दोनों में ही ब्लड है. रेड इज द आर्टरी पार्ट एंड ब्लू इज द वेन पार्ट. ठीक है, आर्टरी वेन अगर आपको नहीं पता तो लेट्स लीव इट, नो इश्यूज. अभी हमको इतना समझना है कि ये ब्लड वेसल्स हैं जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी में चला जाएगा फॉर द एसिमिलेशन पर्पस. आई रिपीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज विलाई एंड माइक्रोविलाई. ठीक है, विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई और होते हैं. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन. Okay, they increase the surface area for absorption. As soon as food is digested, finally it is absorbed by these villi into the blood, and from the blood it reaches to various parts of the body. ठीक है, कौन से 2 न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए इसने? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट. लेकिन जब हम बात करते हैं फैट की, तो फैट ब्लड में नहीं जाके येलो कलर की जो वेसल आप देख रहे हो बीच में, इसमें जाता है. एंड दीज वेसल्स आर कॉल्ड एज लिम्फ वेसल्स. These vessels are called as lymph vessels. ठीक है, lymph vessels में फैट जाएगा, ब्लड में क्या गया? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स चले गए. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो मेंशन किया विलाई. विलाई से फूड एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होने के बाद विलाई में देख रहे हो आप ये येलो और ब्लू, रेड और ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स एंड येलो कलर का लिम्फ वेसल्स. तो येलो और ब्लू में क्या जाएगा? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और लिम्फ में जाएगा फैट. फाइनली ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया फॉर द पर्पज ऑफ एसिमिलेशन. दैट इज द 4th स्टेप. ठीक है, अब फूड अलग अलग सेल्स में जाएगा, सेल्स उसको यूटिलाइज करेंगे और फिर एनर्जी बनाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट फॉर एसिमिलेशन. अब हम चलते हैं लिवर के पास थोड़ा सा. लिवर सिक्रीट्स जूस कॉल्ड एज बाइल जूस. ठीक है, साथ साथ लिवर एक चीज़ को स्टोर भी करता है. जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स, बट इन केस ऑफ एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच इज़ अ लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर. जो भी आपने पीछे यहाँ पे नाम लिखा हुआ था, ग्लाइकोजन. जस्ट अ मिनट. नाउ दिस इज ग्लाइकोजन विच इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो एनिमल में फूड किस फॉर्म में स्टोर हुआ? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर हुआ? स्टार्च के फॉर्म में. ओके, तो दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस इज हाउ द लिवर हेल्प्स इन स्टोरेज ऑल्सो एज वेल एज इट सिक्रीट्स बाइल ऑल्सो. अब फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट आया. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चल रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड. दिस इज हाउ इट इज मूविंग विद, अगेन यहाँ पे क्या चल रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही चल रहा है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में. अब वो पहुंचा फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है. मेजर पानी का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड था वो सॉलिडिफाई होगा, थोड़ा सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में. फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पार्ट में आके रुकेगा और यहाँ से वो बॉडी के बाहर, एंड पार्ट मतलब रेक्टम, और बॉडी के बाहर यहाँ से वो चला जाएगा. सो दिस इज हाउ द डाइजेशन और द इजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंड दिस इज द कंप्लीट 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन मैकेनिज्म, न्यूट्रिशन मैकेनिज्म. ओके, सो आज मैंने आपको इसका ब्रीफ दे दिया. नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे. बहुत सिंपल है. अभी आप एक बार जो आपने समझा, देन यू विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन व्हाट्सअप मी, और जब हम इसका एक बार डाउट क्लास रखेंगे तब आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.